with difficulty in seeing in dim light. He reports frequent stumbling at night and struggles to drive in the evening. On examination, conjunctival dryness and bitter spots are there. Explanation: explain the biochemical role of vitamin A in the vision and how its deficiency leads to night blindness. Describe the structure of rhodopsin and its involvement in phototransduction. What are the enzymatic steps involved in the conversion of beta carotene to active vitamin A? How does the vitamin A deficiency affect the gene expression and epithelial integrity? What biochemical test can confirm vitamin A? लिखो भाई जल्दी से. Sorry. Anyone else? लिख लिया ना, खत्म है ना? Read it. हाँ? পরে লিখিস অতক্ষণ তো আসলে ইলেকশন রিড ইট আরে খারাপ কেন Biochemical role in vision. Vitamin A is oxidized to retinal, which forms the chromophore. 11-cis retinal. 11-cis retinal binds to opsin to form rhodopsin, a crucial pigment in Rhodopsin cells. Upon exposure to light, 11-cis retinal Isomerized to all transretinal transretinal, leading to activation of the phototransduction cascade. Deficiency impairs rhodopsin regeneration, leading to night blindness. Structure जो नहीं लिखेगा उसको बाहर भेजूंगा मैं, खाता एम्प्टी निकला तो सीधा बात. and function of rhodopsin. Rhodopsin consists of opsin, a G protein coupled receptor, and 11-cis retinal. Light absorption converts 11-cis retinal to all transretinal, activating the G protein ट्रांसड्यूसन. हाँ, This Cascade. decreases CGMP CGMP full form levels, closing sodium ion channels and causing hyperpolarization of blood cells. ठीक है बेटा. Biochemical role in vision. Vitamin A is oxidized to retinal, which form the chromophore 11-cis retinal. 11-cis retinal binds to opsin to form rhodopsin, a crucial pigment in rod cells. Upon the exposure to light, 11-cis retinal isomerase to all transretinal, leading to activation of phototransduction cascade. Deficiency impairs rhodopsin regeneration, leading to night blindness. Structure and the function of rhodopsin. Rhodopsin consists of opsin and 11-cis retinal. Rhodopsin consists of opsin, a G protein coupled receptor, and 11-cis retinal. Light absorption converts 11-cis retinal to all transretinal, activating the G protein transduction. This cascade decreases the CGMP. What is the form of CGMP? Anyone? Read it out. Conversion of जोर से सबको सुनाई देना चाहिए. conversion of beta carotene to retinol, beta carotene 15 deoxygenase 15 डैश भी बोल सकते हैं. deoxygenase जोर से भाई, खा के नहीं आएगा. जोर से intestinal mucosa is beta carotene. सुनाई दे रहा है क्या पीछे से? ये जो बोल रहा है नहीं ना भाई, उसको तक सबको सुनाई देना चाहिए. जोर से बोल. Retinal is directed to retinal by retinal aldehyde. Directed using NADPH, retinal binds to retinol binding protein for transport in plasma. Effect on gene expression and epithelial integrity. Retinoic acid, the active metabolite of vitamin A, binds to retinoic acid receptor and retinoid X receptors. This receptor regulates genes involved in cell differentiation, Keratinization. and immune function. Okay. Deficiency leads to squamous metaplasia of epithelial cell, causing dry conjunctiva, xerophthalmia, and केराटोमेलेशिया. ठीक है. कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से मेटाप्लासिया होता है? Any ideas? Deficiency leads to squamous metaplasia of epithelial cells, causing dry conjunctiva and keratomelia. ठीक है ना? लिखा ही तो है भाई, देख के बोलने में क्या है? कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी से मेटाप्लासिया होता है? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में कौन सा विटामिन लगता है? विटामिन ए. सी नहीं, विटामिन ए. वो एपिथेलियल लेयर बनाता है ना, तो एक फिजिकल बैरियर होता है. तो विटामिन ए वो मैंने इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करता है. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो गलती से सी मत दो. ये छोटे एमसीक्यूज है, आ सकते हैं एग्जाम पे. है ना, इतना नहीं लिखेंगे कि स्क्वामिस मेटाप्लाजिया ऑफ एपिथेलियल सेल, सीधा लिखेंगे मेटाप्लाजिया कहाँ दिखते हैं हम. बायोकेमिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, 3 टेस्ट आर देयर.
One is conjunctival impression cytology, dark adaptation test, and serum retinol levels. Usually, we diagnose this vitamin A deficiency by only clinical symptoms, but you can do this biochemical test also. Serum retinol level should be less than 0.35. बस ठीक है ना. डार्क एडेप्शन टेस्ट, हाउ मच शी और ही इज एडेप्टिंग द डार्क. फैट malabsorption and vitamin A deficiency. Vitamin A is lipophilic. What is lipophilic? क्या जोर से बोलो, खड़े होकर बोलो. लिपिड. ओके बेटर. Vitamin A is lipophilic, requiring bile salts and pancreatic lipase for absorption. Steatorrhea leads to impaired micelle formation and reduced vitamin A uptake. Absorption and transport of vitamin A. Retinol is absorbed in the duodenum, esterified to retinal esters and incorporated into chylomicrons. Chylomicrons transport retinal esters to the liver via lymphatic system. In plasma, retinol binds to RBP and transthyretin for systemic transport. आप पढ़ो इसको. हाँ हाँ आप पढ़ो, जोर से पढ़ो और एप्रॉन भी लगाओ अच्छे से, जोर से जोर से. Of generalized fatigue, muscle weakness. हाँ. Sedentary. ओके. डोंट और नॉर्मल वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, वो स्किप कर सकते हैं, बाकी सब पढ़ो. फॉस्फोरस कौन सा, थर्ड वाला, एल्कालिन फॉस्फेटेज. एलपी इज यू है, क्या है ठीक से बोलो. यूनिट है क्या, यूनिट पर लीटर. ठीक है. अरे भाई इतना डर क्यों रहा है, यूनिट पर. ठीक है. उसके बाद सीरम mg नहीं, नैनोग्राम, ng पर ml. ठीक है. कौन सा विटामिन लग रहा है आपको, डी. क्यों लग रहा है आपको, शाम देख के विटामिन डी. हाँ शाम देख के हम कर सकते हैं. स्ट्रीट वेगन डाइट है, मसल वीकनेस बोल रहा है, फैटिग है, डिफ्यूज बोन पेन है इन द शीन ना. छोटी छोटी चीज़ों से याद रखने होते हैं, इससे ही सीधा क्वेश्चन आएगा. मगर वो नॉर्मल वाला पार्ट तब नहीं होगा ना, इसलिए बोला नो, बट लिख लो मगर याद करके रखना है. ओके. ALP का फुल फॉर्म बोलो ना, थोड़ी देर पहले तो हमने डिस्कस किया है ना. एल्कालिन फॉस्फेटेज. देख लो फिर से, एल्कालिन. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 अल्फा. ओके. molecular level. You have to पैराथायरॉइड हार्मोन बोलना ना. पीटीएस देखो तो पैराथायरॉइड हार्मोन बोल, पीटीएस में नहीं बोलना है. ये तो एग्जामिनर बोलेगा इसको मालूम नहीं है पीटीएस पर क्या है, वही पूछेगा कि पीटीएस का फुल फॉर्म क्या है. हाँ बोलो, आप बोलते रहो. कॉम्पनसेट. डिफरेंशिएट हाइपोपैराथायरॉइडिज्म. पैराथायरॉइडिज्म. ठीक है. लिखो. मोस्ट लाइकली बायोकेमिकल डायग्नोसिस. Obviously, it is vitamin D deficiency, which is indicated by low level of 24 hydroxyvitamin D, which is less than 20 nanogram per ml. Hypocalcemia and hypophosphatemia. Increased ALP. What is the full form of ALP? Okay. These findings suggest secondary hyperparathyroidism due to vitamin D deficiency. फिजियोलॉजी में हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, पैराथायरॉइडिज्म ये सब पढ़ाया गया है क्या, हॉर्मोन्स अभी तक नहीं ना, तो नहीं समझोगे, थोड़ा डिफिकल्ट है ना. जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ना, उससे कोरिलेट कर लेना. ये विटामिन डी
ऑर्थो, थोड़ा उसके बाद फिजियो इसके साथ कॉम्बाइंड है, एंड लाइक कैल्शियम के साथ भी कॉम्बाइंड है, फॉस्फेट के साथ भी कॉम्बाइंड है, एलपी के साथ भी कॉम्बाइंड है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, वक्त लेके पढ़ना है इसे, यू हैव टू कोरिलेट, बट इट इज इजी टू डायग्नोस। क्या क्या चीजें देखेंगे हम? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटिमिया एंड इंक्रीज, देख के बोलो भाई, एएलपी नहीं अल्कलाइन फॉस्फेट बोलना है ना, अभी से याद रखो, एलपी शॉर्ट फॉर्म, एलपी पीटीएच बाद में, हाँ एग्जामिनर के सामने, अरे ये क्या था, पीटीएच क्या था, एलपी क्या था, खत्म। जिस वक्त आप एएलपी बोलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलपी, उस वक्त यू विल शटर, समझ लेगा कि ये तो रट के आया, इसको मालूम नहीं है। What is UVB? Ultraviolet B form. ठीक है, पढ़ो पढ़ो भाई, ये तो क्लास 12-11 के फिजिक्स में आता है ना, फिजिक्स नहीं था, मैथ के साथ छोड़ दिया, शायद नहीं छोड़ सकते आप लोग, ठीक है। उसके बाद पढ़ो, which leads to vitamin D3, हाँ फिर से UVP मालूम तो नहीं है फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद प्री विटामिन D3, उसके बाद वो प्री विटामिन D3 लाइन रहेगा है ना, अरे डिसोरेंटेड भी हुआ, ठीक है बोलो, फुल कैल्सिफेरॉल, ओके, कोल कैल्सिफेरॉल, इसलिए आप लोगों को उठा के मैं इधर बोलने को बोलता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है सबका, एग्जामिनर के सामने कोले कैल्सिफेरॉल बोलेगा तो मेरे तरफ मत दिखना। ओके, half life is equivalent to 3 weeks. What is half life? Anyone? आप बोलो ना हाफ लाइफ क्या है? हाँ हाँ जोर से भाई, जोर से कॉन्फिडेंट के साथ बोलो ना, ये तो केमिस्ट्री का है ना, ये तो 12 में था भाई, केमिस्ट्री भी छोड़ दिया, फिजिक्स भी छोड़ दिया, ठीक है, बायोलॉजी में तो अच्छी है, शायद बायोलॉजी में बहुत अच्छी है, सबको आता है आपके सिवा, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टेप 4 नहीं, हाँ स्टेप 3 कंप्लीट करो। Leads to 1, dihydroxy vitamin D, that is calcitriol active, which is active form by 1 alpha, which हाँ ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टारगेट ऑर्गन एंड एक्शंस, हाँ बोलो, इंटेस्टाइन, हाँ कैल्विटिन डी, हाँ उसके बाद 2 क्या है, 2 चीजें क्या है वो बोलो, डबल है क्या या फिर डबल आई, 2 श्योर भाई, कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो रोमन में 2 है ना, 2 बी ट्रांसपोर्टर, तो बोलो ना मुंह के ऊपर। द नेक्स्ट बोन, वायर एंकल एक्सप्रेशन, RNKL, किडनी, इंक्रीज फॉस्फेट, ओके, रेगुलेशन, रेगुलेट भी तो करना है स्टेप, कोई तो देखेगा, कोई तो चेक इन करेगा, क्या क्या कौन कौन चेकिंग करेगा बोलो, पीटीएस का फुल फॉर्म, कोई नहीं बोलना, ये बोलेगा फिर से भाई, तुम आप खड़े ही रहोगे, कुछ करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बोलो पीटीएस का फुल फॉर्म, सब ने बोला है आपके सिवा, भाई मदद कर दो, ये इधर ही नहीं तो फेंट हो जाएगी, बोल दो क्या है हार्मोन, जोर से इंक्रीज, ओके देन, हाँ FGF का फुल फॉर्म फिर से बोलना है, अब बोलो, ये नहीं था, ये अब तक नहीं बोला, ये बोल दोगे तो सारे खून माफ आपके, बैठा दूंगा अभी, बोलो एनीवन एल्स, सब रेडीमेड आंसर चाहिए, पीटीएस का फुल फॉर्म भी चाहिए, FGF लिखो, उसके ब्रैकेट में लिखो फुल फॉर्म में, मुझे मेहनत करना ही नहीं है। GF से क्या हो सकता है?
ग्रोथ फैक्टर हो सकता है कि नहीं? तो एफ से क्या होता है? हाँ, फोलेट ग्रोथ फैक्टर। फोली क्या? फोलेट नहीं भाई, मुझे बोलना है क्या है नेक्स्ट क्लास में, FGF, ठीक है ना? लिख तो रहे हो। नेक्स्ट लाइन बोलो। हाई कैल्शियम एंड फॉस्फेट इनहिबिट व्हाट? आप समझी ना क्यों खड़ा करके बोलते हो? क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी गलत है, आप सबका, इसका नहीं पर्टिकुलरली, बहुत लोगों का प्रोनाउंसिएशन भी गलत है, फुल फॉर्म में भी नहीं आता, हाफ लाइफ भी नहीं मालूम, केमिस्ट्री नहीं मालूम, फिजिक्स नहीं मालूम, बायोलॉजी पकड़ूंगा तो वो भी तो खत्म होगा। ठीक है, बैठ जाओ, लिखो। इसलिए खड़ा करके पूछता हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना चाहिए ना। कुल कैल्सिफेरल बोलेगा तो खत्म है, कुल कैल्सिफेरल ना, कौन पढ़ाएगा घर में? कोई घर में तो कोई नहीं बोलेगा, इधर ही बोलेगा। सबके लिए ये सिर्फ उसके लिए नहीं, सबके लिए। ये आप चार्ट से भी कर सकते हो, ठीक है ना, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, चार्ट से भी कर सकते हो बुक में, या फिर इससे भी। रेगुलेशन पार्ट तो इजी है ना, ये तो लिख सकते हो। इसको अब मैं कंसिडरेशन में लूंगा कि आप लोग जिधर से कंफर्टेबल। इन कैल्शियम फॉस्फेट एंड एलपी हमने तो अभी पढ़ के आया, लो सीरम कैल्शियम, लो सीरम फॉस्फेट एंड हाई व्हाट? एलपी का फुल फॉर्म बोल दो। लो सीरम कैल्शियम लेवल, डिक्रीज इन इंटेस्टिनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लो 1,25 क्या है? फुल फॉर्म बोलो इसका क्या है? 1,25 OH2ND फुल फॉर्म बोलो, किसको आता है? खड़ा होके बोलो ना, खड़ा होके, जो भी बोलना है खड़ा होके बोलना, बैठ के कुछ नहीं, जोर से 1,2,5 हाँ। डाइहाइड्रोक्सी ओके, हाँ ठीक है, बैठो। मालूम होना चाहिए ना, जो भी आप बोलो वो मालूम होना चाहिए ना। इसको नहीं तो कैसे बोलेंगे 1,25 OH2ND, कैसे ऑकवर्ड होगा ना। लो सीरम फॉस्फेट, पैराथायरॉइड हार्मोन इंड्यूस्ड फॉस्फेटूरिया ड्यू टू सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, हाई alkaline phosphatase increased in bone turnover reflecting osteoid accumulation and defective mineralization, that is osteomalacia। ये सब आपको ऑर्थो में मिलेगा, अभी लिख लो बस, नहीं तो ये बहुत टफ वर्ड है osteoid। आपसे LPPTH नहीं हो रहा है तो मैं आपसे osteoid का भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। डन, चेंज कर रहा हूँ मैं, लिख लेना बाजू वाले से। रोल एंड रेगुलेशन ऑफ 1-alpha हाइड्रोक्सिलेज लोकेटेड इन द प्रोक्सिमल ट्यूब्स ऑफ द किडनी। प्रोक्सिमल और डिस्टल क्या होता है भाई? ये तो एनाटॉमी का पार्ट है ना, ये तो मस्ट पढ़ाया होगा, ये नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़ा है। प्रोक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है? प्रोक्सिमल मीन्स, अरे प्रोक्सिमल मीन्स पास में कि दूर में? पास में। और डिस्टल मीन्स दूर में, ठीक है ना। और डिस्टेंस दूर ना, छोटे छोटे चीजें मगर याद रखना चाहिए। कॉन्वर्ट 25 क्या है ये बोलो? 25 हाइड्रोक्सिलेज एंड विटामिन डी भी बोल सकते हैं ना, या फिर कोलकल्सिफेरल भी बोल सकते हैं। देन 1,25 डाइहाइड्रोक्सिलेज विटामिन डी या फिर कोलकल्सिफेरल व्हिच इज एक्टिव फॉर्म स्टिमुलेटेड बाय PTH फुल फॉर्म। ठीक है, मिस चंदनी नहीं बोला। लो फॉस्फेट दिख रहा है मुझे, इनहिबिटेड बाय हाई लेवल ऑफ 1,25। चंदा मैडम बोलो ये क्या है? हाई लेवल ऑफ 1,25 बोलो, खड़ा होकर बोलो क्या है भाई? डाई एंड डी का मतलब क्या है? 1,24 डाइहाइड्रोक्सिलेज एंड डी, ठीक है। FGF 23 फुल फॉर्म FGF का अभी भी किसी को याद आ रहा है क्या? कौन सा ग्रोथ फैक्टर? Secreted by osteocytes in response to high phosphate, ठीक है। Stimulated and inhibited, ये तो पार्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन सा है? एक्टिव पार्ट। हाँ, और कहाँ पे होता है? प्रोक्सिमल ट्यूब्स ऑफ किडनी। डायग्राम हो गए ना उधर, यूरिनरी ट्रैक्ट फिजियोलॉजी में नहीं, ये तो थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा। फिर भी अपने बायोलॉजी में तो ड्रॉ किया होगा ना वो नेफ्रॉन का, उधर तो मार्कआउट में लिखते हैं ना प्रोक्सिमल डिस्टल ट्यूब्स एसेंडिंग डिसेंडिंग, तो आप तो पता होना चाहिए ना, ये तो MBBS नहीं चाहिए। मोलिकुलर बेसिस ऑफ मसल वीकनेस एंड बोन पेन, विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू लो 1,25 क्या है? फिर से बोलो। एंड डी का मतलब
विटामिन डी होल कैल्शियम कोलकल्सिफेरल बोल सकते हैं ना, एक्चुअली तो मीनिंग वो डी डी ही होगा, तो कोलकल्सिफेरल प्रोफेशनल डिक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ कैल्विटिन डी इन द मसल्स, impaired calcium homeostasis in muscle fibers which leads to reduced excitation and contraction coupling, bone pain, unmineralized osteoid accumulation causes microfracture which is osteomalacia, पैराथायराइड बाद में मैं लिख लेना, जिनसे हो गया लिख लेना, पैराथायराइड हार्मोन compensation and its effect on calcium homeostasis, low vitamin D leads to low level of calcium which leads to increased level of what, PTH क्या है फिर से बोलो, अब तक तो याद आना चाहिए, सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, इफेक्ट्स ऑफ क्या है भाई, PTH नहीं पैराथायराइडिज्म, आजा, इंक्रीज रेनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, increase osteoclast activation and increase in 1-alpha hydroxylase activity. Important part है भाई, लिख लो, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कैसे पैराथायराइड हार्मोन कॉम्पेंसेट करता है कैल्शियम होमियोस्टेसिस, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, पूरा क्वेश्चन की जरूरत क्या है भाई, डायरेक्ट लिखेगा, जैसे कि क्वेश्चन आया ना विटामिन डी हार्मोन है, बोलते हैं हम भाई क्यों है, रीजन क्या है, ऐसा आ सकता है छोटा, इतना 2 मार्क ले दे सकते हैं हम, विटामिन डी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बड़ा क्वेश्चन आने का जरूरत नहीं, छोटा आ जाएगा, क्योंकि बड़े के लिए तो उधर है ना एमाइनो एसिड्स, यूरिया साइकिल, छोटे से कहाँ हम करेंगे एडजस्ट, इधर ही दे देंगे 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में, ये चार्ट है देखो, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी से और प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म से, हाँ कैल्शियम देखो इधर कम है कि नहीं, विटामिन डी में एक तो नॉर्मल या फिर कम हो सकता है सीरम कैल्शियम जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, या फिर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में जो बड़ा हुआ होता है, तो एक निकल गया, सीरम फॉस्फेट इक्वल रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, पैराथायराइड हार्मोन सेम, मगर ये क्या है लास्ट सेकंड लास्ट, फिर से बोलो क्या है इसका फुल फॉर्म, कोलकल्सिफेरल, तो इससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिक्रीज होगा उधर नॉर्मल या फिर हाई रहेगा ना, एएलपी में हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ही बढ़ सकता है या फिर नॉर्मल हो तो कर सकते हैं थोड़ा, तो मेनली सीरम कैल्शियम एंड 124 1 and 225 डी पे, ठीक है, जोर से पढ़ना है सबको सुनाई देना चाहिए, लंच किया ना आपने, डन विथ योर लंच, ओके देन देयर मस्ट बी सम रियली गुड ग्लूकोज इन द ब्लड, मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा, जोर से और जोर से, सामने आइए, सामने आ जाइए, इधर सामने आके पढ़िए, हाँ इधर से होगा, हाँ पढ़िए आप पढ़िए, फ्रेजिलिटी, what is the susceptible, ठीक है, मैं बहुत खुश है गई, क्वेश्चन बोल दिया मतलब आप तो आ ही जाएगा, ठीक है ना सुश्री, आंसर तो मालूम होगा ना, इतना खुश हो आप, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ आरबीसी प्रोटेक्शन, आरबीसी मेम्ब्रेन contains PUFAs, what is PUFA, PUFA, which are prone to oxidative stress, vitamin E prevents oxidation of these lipids, maintaining the membrane stability and preventing hemolysis, what is hemolysis,
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन सा है भाई, कौन सा ऑर्गन में? ठीक है, आता है आप लोगों को। ससेप्टिबिलिटी इन प्रीटर्म यूनिट्स, लिमिटेड प्लासेंटल ट्रांसफर ऑफ विटामिन ई एज इट ऑकर्स मोस्टली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। प्लासेंटल ट्रांसफर कहाँ से होगा भाई, कहाँ से आएगा इसको विटामिन ई? बच्चे को कहाँ से मिलेगा विटामिन ई, कहाँ से भाई? प्लासेंटा से आ रहा है ना। प्लासेंटा कहाँ से लेते हैं खाना? मदर से लेते हैं ना। ठीक है भाई, इतना सोचना क्या है। लो हेपेटिक स्टोर्स एंड रिड्यूस अल्फा टीटीपी एक्टिविटी। ठीक, अल्फा टीटीपी का फुल फॉर्म आता है किसी को? पूछने से पहले मैं ही पूछ लेता हूँ, तो यही क्वेश्चन है कि सर अल्फा टीटीपी क्या है, बोलो भाई। नहीं आता किसी को। ठीक है भाई। हाई ऑक्सीजन एक्सपोजर इन न्यूनेटल आईसीयूज, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आप लोगों को क्या थ्योरी में पढ़ाया गया क्या एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में अब तक कि 100 लेवल ऑफ 100% ऑफ ऑक्सीजन भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी चीज़ों का नहीं पढ़ा गया ना अब तक। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम? आरबीसी मेम्ब्रेन कंटेंट्स पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर प्रोन टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, विटामिन ई व्हिच प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस लिपिड्स, by that it's maintain the membrane integrity of what, of whom, किसका membrane integrity इंटेक्ट रहता है भाई, लिखा है इधर। आरबी भाई इतना सोचना क्या है। ससेप्टिबिलिटी इन प्रीटर्म यूनिट्स, प्रीटर्म क्या है भाई? ये टर्म तो नया सुना मैंने आज। क्या है भाई प्रीटर्म, क्या है और टर्म क्या है? आता है क्यों? क्या किससे पहले भाई? 9 months से पहले जो मान से नहीं भाई, मान का भूल जाओ अब तक, अब से वीक से बोलना है, वीक। ऐसा नहीं कि 9 मंथ 8 वीक नहीं, सब वीक में बोलना है। उसको पहले कैसे बोला? 28 वीक्स। उसको तो मान से भी बोल सकते थे ना, बोला क्या हमने? तो प्रीटर्म कौन सा है भाई और टर्म कौन सा है? प्रीटर्म है, टर्म है, तो पोस्टर्म भी तो होगा कुछ। क्या है, नहीं आता? क्या क्या क्या, जोर से बोलो। Born before 36 months 2 weeks. पास हो आप, मगर ठीक नहीं है आंसर। 37 हो सकता है क्या? 37 वीक्स पता करो, लिखो भाई। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। प्रीटर्म और टर्म ओबीजी का चैप्टर में आता है ना, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि टर्म क्या है भाई। क्वेश्चन में तो ये नहीं बोलेगा कि हाँ अब तो ओबीजी नहीं है तो नहीं देते ओबीजी का क्वेश्चन, थोड़ा प्रीटर्म हटा देते हैं, कुछ नहीं हटाएगा भाई, देगा। अल्फा टीटीपी का फुल फॉर्म बोलो भाई, याद आया? नहीं आया? न्यूनेटल का डेफिनेशन नहीं आता? आता क्या है भाई? उफा का फुल फॉर्म आता है ना? वाह बहुत बढ़िया, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कैसे बोले? एग्जांपल दे सकते हो क्या कुछ? पीयूएफए का एग्जांपल्स नहीं आता, वो भी लिख दो ब्रैकेट में, ऐड करूँ? वही रह गए। डन सर, आप पढ़ दो। हाँ पढ़ दो, जोर से इस बार जोर से। Oxidative stress leads to lipid peroxidation in RBC values causing fragility and Rupture. resulting in the vascular hemolysis, anemia and increased bilirubin levels. diagnosis by chemical test. Serum bilirubin levels and That will be less than PMG per liter. mg, फुल फॉर्म में बोलो भाई। ठीक है per liter in units in this case in shear side hemolysis stress excessive hemolysis भाई, ये उधर को पार्ट पढ़ा कि आपने लेस देन? in deficiency. ठीक से धीरे धीरे बोलना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एरिथ्रोसाइट हेमोलाइसिस टेस्ट, excessive hemolysis access to hydrogen peroxide. जोर से भाई। आपका ऐसे फ्लो, ऐसे होता है फ्लो, इधर से ऐसे साउंड ऐसे जाता है। जोर से Increase serum. सेमिनार भी तो करना है ना ऊपर के क्लास में, तो अभी से प्रैक्टिस करो। बोलो Increase serum dialdehyde. जोर से भाई, तू जोर से बोल। As an indicator of lipid peroxidation, interaction with glutathione And other antioxidants. Induction vitamin E stabilize membrane Membranes. oil. Glutathione peroxidase neutralize hydrogen peroxide.
सिनर्जिस्टिक एक्शन विद विटामिन सी। regenerate oxidized vitamin भाई E. कोई और बोलो। मैडम मैडम आप जोर से बोलो, ये तो जोर से बोल ही नहीं पाया, फिर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ या ना? नहीं। एप्रोन लगाओ मैडम, आप ठीक से एप्रोन लगाओ। एमजी का फुल फॉर्म बोलो ना, मैंने बोला ना सब कुछ का सबका फुल फॉर्म बोलना है। एक्सपोज टू मेलोनिल्डिहाइड, मेलोनिल एल्डिहाइड, मेलोनिल as an indicator of lipid peroxidation interaction with glutathione and other antioxidants. Vitamin E is protected by the glutathione peroxidase then peroxidase. सिनर्जिस्टिक Regenerates oxidized vitamin E. ठीक। कौन बातें करे भाई? नेक्स्ट आप दोनों बोलना है। A 35-year-old male with a history of chronic fat absorption, secondary to cystic fibrosis, present with progressive difficulty in walking, loss of प्रोप्रियोसेप्शन, proprioception, and absent deep tingling reflexes. न्यूरोलॉजिकल, Examination reveals ataxia, डिजार्थ्रिया। dysarthria, and a positive lumbar sign. आप समझ में आता है ना क्यों मैं आप लोगों को खड़ा करके बोलता हूँ कि बोलने को, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना चाहिए ना। क्वेश्चन, Questions. What is the biochemical role of vitamin E in neural function and how does its deficiency lead to neurological deficits? Describe the mechanism by which vitamin E prevents oxidative damage in cellular membranes. How does vitamin E deficiency affect lipid peroxidation and what are its implications in neurological degeneration? What biochemical markers can be used to diagnose vitamin E deficiency? How does the role of alpha tocopherol transfer आया कि नहीं? टीटीपी का फुल फॉर्म आया कि नहीं? किससे पूछूंगा मैं? alpha tocopherol transfer protein influence vitamin E bioavailability and what are the implications of in ataxia ऑफ नहीं, इन एटैक्सिया विद implications in ataxia with vitamin E deficiency? एवेट का भी फुल फॉर्म पूछूंगा मैं बाद में। Implications in ataxia with vitamin E deficiency. ठीक है भाई, आप लोगों का एनाटॉमी में सीएनएस पढ़ाया गया कि नहीं? उसके बाद फिजियोलॉजी में ये सब डीप टेंडन रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, सीएनएस पार्ट, एनाटॉमी और फिर फिजियोलॉजी में तो थोड़ा दिक्कत हो गई समझने में, उधर पढ़ के फिर से पढ़ना है इसको, ठीक है ना? बैठ जाइए, अब लिख लो बच्चों। एवेट और अल्फा टीटीपी का फुल फॉर्म मैं पूछूंगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर बोलेंगे कि एवेट का फुल फॉर्म क्या है सर, पूछेंगे। हाँ, Biochemical role in neuronal functions. Vitamin E, primarily alpha tocopherol, acts as a lipid-soluble antioxidant, protecting neuronal membranes rich in polyunsaturated fatty acids from oxidative damage. This deficiency leads to increased oxidative stress, damaging neuronal myelin sheaths, causing demyelination. बोला ना थोड़ी दिन पहले डीमाइलेशन हो जाता है, ठीक है। Causing demyelination and axonal degeneration, leading to neurological symptoms. Mechanism of oxidative protection. Vitamin E donates an electron to reactive oxygen species others, neutralizing lipid peroxide radicals in membranes. This prevents the chain reaction of lipid peroxidation and maintains membrane integrity. The oxidized tocopherol radical is regenerated by vitamin C or glutathione. इसको समझाना है तो लेमन के टर्म में, तो कैसे समझाओगे? बायोकेमिकल रोल इन न्यूरोनल फंक्शन, जितना भी समझ में आया, कितना समझ में आया आपको बोलो। Vitamin E अपने बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव ऑक्सीजन इंग्लिश में बोलो भाई।
vitamin E donates an electron. नहीं मैकेनिज्म नहीं, बायोकेमिकल रोल। फिर से पढ़ ले एक बार, कोई दिक्कत नहीं। नहीं खुद पढ़ ले पहले, उसके बाद समझाना है, कितना समझा तो। जिन इंग्लिश में समझो सर। हाँ इंग्लिश में हाँ compounds which have membranes which are rich in polyunsaturated fatty acids are protected by vitamin A. from oxidative damage. From oxidative stress by free radicals. Okay. The vitamin E reacts with the free radicals. Okay. The deficiency of vitamin E would therefore lead to increased oxidative stress to those polyunsaturated fatty acids present in the membrane, leading to membrane degeneration, demyelination, and एक्सोनल। demyelination would lead to neurological changes. ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख लो भाई। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोटेक्शन कौन समझाएगा मुझे? मैम आप जो प्रोजेक्टर के नीचे है, हाँ इस मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोटेक्शन क्या है भाई, समझाओ मुझे थोड़ा, आपको क्या समझ में आया? रीडिंग पढ़ लीजिए एक बार फिर से, जोर से पढ़िए और खुद समझिए। Vitamin E donates an electron to reactive oxygen species, neutralizing lipid Peroxide peroxide radicals in membrane. This prevents the chain reaction in lipid peroxidation and maintains membrane integrity. The oxidized tocopherol radical is regenerated with vitamin C or glutathione. Okay. Now make me understand in simple terms. Whatever you can, it can be short. पढ़ लो फिर से खुद एक, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझो, समझ के बोलना है। मेन वही है ना, आप याद करोगे फिर लिख लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। खुद को भी समझ में आना चाहिए ना, क्या पढ़ रहा हो क्या लिख रहा हो, नहीं तो एग्जामिनर बीच में से कुछ पूछेगा, खत्म आप लोग। So basically vitamin E इन इंग्लिश काइंडली, क्योंकि लिखना सार के सामने तो इंग्लिश में भी बोलना है ना, मैं अभी इधर वैसे बोल रहा हूँ मगर नहीं बोल पाऊंगा ना उधर। बोलिए। विटामिन ई डोनेट्स electron to reactive oxygen species which neutralizing the lipid peroxide radical in the membrane. So basically vitamin E prevents the radicalization of membranes na, by giving a to whom? Reactive oxygen species. Okay, then second line, this prevents chain reaction of lipid peroxidation. which maintains the membrane integrity. And the last one The oxidized tocopherol radical is regenerated by vitamin C or whom? Glutathione. Simple है। Done? लिख लिया आपने? बैठो, लिख लिया। Effect on lipid peroxidation and neurological implications. Vitamin E deficiency leads to increased lipid peroxidation due to unchecked free radical damage. Accumulation of lipid peroxidase disrupt the neuronal cell membrane integrity and myelin sheath function, resulting in axonal degeneration, demyelination and seen in posterior column degeneration. अभी तो मालूम नहीं होगा आपको posterior column कौन सा है, आप क्योंकि एनाटॉमी में CNS नहीं पढ़ेगा ना, अभी लिख लो, बाद में फिर से पढ़ना है इसको, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ईआरएन में तो सब है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सब है ना, ठीक है, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बायोकेमिकल मार्कर्स फॉर डायग्नोसिस, सीरम अल्फा टोकोफेरॉल लेवल्स वी कैन मेजर व्हिच विल बी लेस देन 5 क्या फुल फॉर्म बोलो। हाँ मुझे इतना एक्सपेक्टेशन भी रखना पड़ रहा है कि मिलीग्राम का शायद मालूम ना हो। सजेस्ट डेफिशिएंसी, एरिथ्रोसाइट हेमोलाइसिस टेस्ट, इंक्रीज हेमोलाइसिस इन रिस्पांस टू होम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, भाई लिखा है इधर, सीरम मेलोनेल्डिहाइड MDL levels elevated in increased lipid peroxidation, plasma vitamin E to total lipid ratio which will be less than 0.8 milligram per gram indicates deficiency. ये कैसे हुआ? मिलीग्राम भी है भाई, मिलीग्राम भी है, ग्राम भी है, ये कैसे होता है? कोई आइडिया है क्या आप लोगों को? ऐसा होता है ना मिलीग्राम पर लीटर,
भाई मिलीग्राम बाय ग्राम, ये रेशियो है ना, रेशियो में तो ऐसे ही होता है, ऊपर वाला विटामिन ई का होगा मिलीग्राम में और लिपिड का होगा ग्राम में, इसलिए मिलीग्राम बाय ग्राम। ये तो 12 में है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, लिटरली लिख कर नहीं आना है क्योंकि रेशियो में है, छोटी छोटी चीजें मगर इंपॉर्टेंट है। इन बायोबिलिटी एंड इम्प्लीकेशंस इन एवेट का फुल फॉर्म एटेक्सिया फंक्शन अल्फा टीटीपी फैसिलिटेट्स हेपाटिक सीक्रेशन ऑफ अल्फा टोकोफेरल इनटू फायर। भाई देख के बोल दो, इधर नहीं, इधर इधर नजर इधर होना चाहिए। तो एटेक्सिया क्या है, एवेट का फुल फॉर्म फिर से बोलो। एटेक्सिया विद विटामिन ई डेफिशिएंसी पैथोफिजियोलॉजी, म्यूटेशन इन द टीटीपीए gene impairs alpha TTP function, reducing vitamin E transfer to tissues, particularly in neurons, leading to progressive ataxia and neurodegeneration। वो ठीक से चल नहीं पाएगा ataxia में, ठीक है ना, उससे कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होगा, उसको इधर से इधर चलने को बोलो, उधर अलाइन हो जाएगा, इधर इधर जाएगा या फिर उधर गिर भी सकता है। ये तो लिख लिया ना, नेक्स्ट स्लाइड देखो भाई, कौन बोलेगा? मिस चंदा के साथ जो है आप हाँ पढ़िए। मिस चंदा तो बच गए आज, बोला कर मिस चंदा करके दूसरा बोल दिया। जोर से मैडम। उधर ब्लड हो गया ना फिजियोलॉजी में, हो गया है मुझे मालूम है, उन लोगों ने बोला है, तो ठीक है आप क्वेश्चन भी करूंगा उधर से। ठीक है रुको, अभी रुको। ये सिरोसिस क्या होता है भाई? कुछ तो होगा ना, कुछ तो डिजीज होगा, क्या है भाई? तू नहीं बोलना, तू भी नहीं बोलना, बोलो भाई सिरोसिस क्या है? सुश्री बोलो सिरोसिस क्या है? चंदा मैडम, मिस चंदा बोलो सिरोसिस क्या है? लिवर, लिवर का एक डिजीज है ना, अच्छा है कि खराब है? डिजीज अच्छा होता है कभी? कितना खराब होगा, ज्यादा या कम, या फिर मैनेज कर सकते हैं? ज्यादा। बैठो बैठो, आप रहो। ब्रूजिंग क्या है भाई? क्वेश्चन भी तो समझ में आना चाहिए ना, ब्रूजिंग क्या है भाई? सिरोसिस पढ़ के चला जाओ, ब्रूजिंग का मालूम नहीं क्या है भाई, मेलाना क्या है, क्या है ब्रूजिंग क्या है? क्या कैसे हो सकते भाई ब्रूजिंग? प्रेशर, उसको मुक्का मार दिया, छोटा सा मुक्का मार दिया। यूजुअली क्या होता है, हम किसी को मारते हैं या फिर ट्रॉमा लगता है तो नहीं होता ना यूजुअली, मगर उसका इजीली हो जाएगा, अंडर द स्क्रीन देयर विल बी सम ब्लड ना, तो उसको ब्रूजिंग बोलते हैं। मेलाना क्या है भाई? बोलो भाई, कुछ तो होगा ना, ऐसे ही तो क्वेश्चन पर के नहीं जा सकते, मीनिंग भी तो समझ में आना चाहिए, बेसिक मीनिंग। फॉर व्हाट रीजन? ब्लैक कलर क्यों होगा भाई? Anyone else? Yes, blood which is consumed ना, माने जो क्या होता है उसको दूसरा क्या बोलते हैं, जो हजम हो चुका है उसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टेड ना, और ब्लड तो जब नीचे जाता है तो डाइजेस्ट हो जाएगा ना, उसको मेलाना बोल सकते हैं। ठीक है बेट। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रॉमा, लेबोरेटरी फाइंडिंग शोज प्रोलॉन्ग पीटी। पीटी का फुल फॉर्म बोलो भाई, आप बोलो सर, पीटी का फुल फॉर्म? ये तो हो चुका है ना फिजियोलॉजी में, ये तो इधर का पार्ट नहीं है। इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, बैठो, आप बैठो, लिखो भाई जल्दी से लिखो, आप भी लिखो। खड़ा होके लिखो, आना तो चाहिए था ना, उसने तो पीटी बोल दिया फुल फॉर्म, आयनर छोड़ दो, एक तो बोल दिया, आपको तो एक भी नहीं आता। खड़ा होकर आओ, नींद भी चला जाएगा।
पीडी का फुल फॉर्म क्या है भाई? आईएनआर इंटरनेशनल क्वेश्चन अच्छे से पूछ देख के रखो, कुछ पूछ सकता हो इससे बाद में। लिख लिया आप दोनों ने? बात जो कर रहे हो लिख लिया? खत्म। Done with this question. Liver disease and vitamin K deficiency. The liver synthesizes vitamin K dependent coating factors. Some coating factors are dependent on vitamin K. In which factors are dependent on coating on vitamin K? Which factors? Coating factors? 7, 9 and more are there? 2, 7. Okay, we'll see. Decreased hepatic function leads to reduced production of these factors. Additionally, biliary obstruction due to liver disease impairs fat soluble vitamin absorption, worsening the condition. लिखो भाई, कौन कौन से बोले? 2, 7, 2, 7, 9 and 10. Okay, we'll see. याद रखना है भाई, आएंगे क्वेश्चन में. Which प्रोटीन फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन के? लॉन्ग क्वेश्चन क्यों देना भाई, छोटा पिक करूंगा, दे दूंगा. 4 होंगे, कुछ भी 4 हो सकते हैं. 1, 2, 1, 2, 9, 10, 2, 9, 11, कुछ भी रेंडमली दे सकते हैं. जिसको अच्छे से आएगा वही लिख सकेगा. ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, लास्ट है ये. ठीक है भाई, 4 बज गए, जल्दी से ख़त्म कर लो. उसके बाद क्या करना है? क्लास के बाद क्या है? हॉस्टल. उसके बाद लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में पढ़ते हो क्या आप लोग? दिख तो नहीं रहा, हमें ना दिखो. और 9 बजे से खाना, फिर से खाना खाने के बाद सोना कितने देर बाद? ओ ये तो 9 बजे ही खा के सुबह देखेंगे. थोड़ा पढ़ा करो भाई, अभी से पढ़ा करो. सेकेंड ईयर में तो और भी टफ सब्जेक्ट हुए ना, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, वो तो बहुत टफ है. मेहनत दुगना करना पड़ेगा. अभी सबसे इजी सब्जेक्ट है. इजी नहीं बोल सकते, एनाटॉमी डिफिकल्ट है. बायोकेमिस्ट्री ठीक से क्वेश्चन किया तो वो भी डिफिकल्ट बन सकता है, डिपेंड्स. डन? मोस्ट प्रोबेबली यस. कौन पढ़ेगा मेरे लिए? मैडम आप. हाँ आप पढ़ो. हाँ यू आर द वन. जोर से पढ़ना है. खाना खाया ना आपने? ठीक है, आप पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं. डीआईसी का फुल फॉर्म, हाँ ये तो बात है ना, मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन पढ़ो. डीआईसी का फुल फॉर्म बताओ. अरे देख के नहीं भाई, इधर भाई, क्या मेरे सामने देख रहे? इंट्रा क्या? इंट्राकार, इंटरपूल या फिर इंटर पुलिस, क्या है भाई बोलो? वो सब देख रहे, खाता देख रहे. वाह क्या स्मार्ट है. पूछूंगा ही नहीं मैं अभी, इससे ही पूछूंगा. खत्म. बोलो बोलो डीआईसी का फुल फॉर्म. एवेट का तो बोल दिया था, इसलिए सबने देख लिया ना. इफ यू पीपल आर स्मार्ट एंड आई एम आल्सो स्मार्ट. बोलो बोलो भाई. डिसेमिनेटेड इंट्रामस्कुलर
ठीक है, आप पढ़ो, बाकी पढ़ो, देख लो भाई किधर है। डिसेमिनेटेड इंटरवास्कुलर, पढ़ो जोर से भाई, मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा, मैं एज्यूम करना पड़ रहा है कि हाँ ये शायद बोल रहे हैं पोलोंग पीटी प्रोथोम्बिन टाइम एंड नायनर। जोर से डिफिशियंसी, हाँ हाँ ऐसे बोलना है। पीटी आयनर क्या भाई, एग्जामिनर सुनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको समझाओ कि मैं जानता हूँ पीटी का फुल फॉर्म, तो ना खुश होगा। बोलो बोलो उसके बाद, नॉर्मल levels. Now you can see in this question there is what? Prolonged PT and INR. Prolonged PT and INR. Normal platelet count. Normal platelet count. It can be normal fibrinogen levels also, but it can be all four. ठीक है ना? अब DIC फिर से फुल फॉर्म बोलना है ना, DIC तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमने लिखा है ना, शॉर्ट फॉर्म तो हम बनाते हैं, उसका नाम तो एक्चुअल तो वो है। आपका नाम क्या है? फिर सुन नहीं, शो मी, तो आपका छोटा नाम करके तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बड़ा ही नाम बोलना है। फुल बोलो बोलो, डिसेमिनेटेड, ठीक है। एपीटीटी क्या है बोलो, ये भी तो हो ना फिजियोलॉजी में, ठीक है अच्छा छोड़ो। नेक्स्ट लाइन, सी हियर इज लो फाइब्रोजन लेवल एंड देयर इज नॉर्मल एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ड्यू टू एक्सेसिव ओके प्रेजेंस ऑफ एंड डिग्रेडेशन। अच्छा कैसे डायग्नोस करेंगे? फैक्टर से, हाँ फैक्टर में देखो कौन कौन से फैक्टर है, 2, 7 आएंगे भाई, लिख देंगे के विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर 4 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, मेरा मर्जी, मगर आएगा, मैं हूँगा तो दूंगा ये। बोलो बोलो पढ़ो, फैक्टर ऐसे रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ, बैठ जा भाई, बैठ जा बैठ जा। Deficiency, repeat PT correction after vitamin K administration. There will be repeat correction of prothrombin time after the administration of what? Vitamin K. It can be also, by it can be also we can diagnose there is vitamin D deficiency is there or not ना, आप smart enough हो तो ठीक है। डन, लिख लिया, डन, मोस्ट प्रोबेबली यस। खत्म है कि नहीं? और है, देखना पड़ेगा और कितना है, और एक है भाई, कर लो। लास्ट वाला स्लाइड कौन पढ़ेगा? है, आप बोलो फिर से, हाफ लाइफ क्या है? अब समझ में आया ना फिर से क्यों खड़ा किया मैंने? हाफ लाइफ बोलो क्या है, फिर से 3 बार बोला गया है? सुना যাচ্ছে না? in English please। ঠিক আছে বল। 4 to 6 hours, हाँ ठीक है। समथिंग रेशियो, फिर से बोलो भाई, जब तक नहीं याद आ रहा है इधर ही खड़ा रखूंगा। ओके